Good morning, everyone. I'm Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor Electrical Engineering. Also, I'm working as a Training and Placement Officer. Today is 20th lecture. We will discuss remaining portion of Unit 2. Unit 2 covers DC machine. Lecture 20, Unit 2, remaining portion of DC machine. So let us have a quick overview on Unit 2. Syllabus, what it includes, constructional features of DC machine, types of armature winding, function of commutator for motoring and generating action, factors determining induced EMF, factors determining electromagnetic torque, various types of DC generator, series shunt, compound, long shunt and short shunt generator, significance of back EMF, relation between back EMF and terminal voltage, then armature reaction, methods to improve the commutation, performance and characteristics of different types of DC motor, speed control of DC series and shunt motor, need of starter, 3-point starter and 4-point starter, electric braking, application of DC motors, faults in DC machine, losses in DC machine, loss by Swinburne test, determination of loss by Swinburne test. Then rating and specification of DC machine. Let us have a quick overview. This is the construction of DC machine. Stator, rotor, yoke, frame, winding, shaft, poles use, field pole commutators, armature, conductor and armature slots. Working principle of generator, which is based on Fleming right hand rule. Generator converts mechanical energy to electrical energy, and in which you can see at input mechanical shaft is providing power, and at output there is a sinusoidal wave which is obtained through the load, means mechanical energy is converted into electrical energy, and this is the principle of generator. Faraday's law of electromagnetic induction. EMF equals to minus d phi by dt, minus sign represent Lenz's law. Here one more animated. This is the working principle of generator. Armature is rotating, mechanical is input and output. You can see the bulb is connected. So output is connected through the electrical load, which is the bulb. Electrical load, which is bulb. Electrical load also consists. You can see at your home. You can see fan as a electrical load, motor as a electrical load, and whatever equipment, whichever equipment that consumes electrical energy.
is known as electrical load. One more DC generator. Yeah. So today we are going to discuss in detail working principle of DC motor. If we talk about working principle of DC motor, first you can see here in BT board in 2006, 9, 14, 17, and it is also important in 20. It may be asked. So this is a very important topic. So let us start this topic. डीसी मोटर की कार्यप्रणाली means working principle of DC motor. Let us have a quick look. Let me choose a pen, erase all slide. Yeah. See, here north and south, these are the main poles. About the figure description, if I'm talking about, this is the north pole and this is the south pole. Means it is the property of the magnet. You can see this is the north and this is the south. When we two pieces of magnet come closer to each other, then if there are, this is the north and this is the south, then there will be the attraction. And if this is the north and this is also the north, so there will be the repulsion. मीन्स प्रतिकर्षण, यानी कि समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान जो पोल होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. So in between main poles north and south you can see magnetic fields line. मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, अगर जो हम बात करें चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी मैग्नेट में होती हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं वो नॉर्थ से निकलेंगी और आपकी साउथ की तरफ जाएंगे. और इसमें अगर जो हम मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में वी आर गोइंग टू पुट अ करंट कैरिंग कंडक्टर. हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बीच में एक लूप इंसर्ट करेंगे विच इज नोन एज करंट कैरिंग कंडक्टर. तो वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है मोटर का, पहले आप ये जान लें, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है. मोटर है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड. ठीक है. अगर जो डेफिनेशन की इसकी इंग्लिश में बात करें, whenever a current carrying conductor is placed in the magnetic field, a force is experienced by the conductor which produces torque. और आपको पता है टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू आर, मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो if there is a torque, so there will be a rotation and motor starts rotating. If I am going to talk about in हिंदी, डीसी मोटर की कार्यप्रणाली को आप देख पा रहे हैं कि फिगर 12 में समझाया गया है. इसमें आर्मेचर लूप का कंडक्टर ए, दिस इज द कंडक्टर ए, उत्तर पोल मीन्स ये नॉर्थ पोल, कंडक्टर बी, दिस इज द कंडक्टर बी, साउथ पोल के इफेक्ट में है. साउथ पोल के इफेक्ट में मीन्स ए जो है वो नॉर्थ पोल के इफेक्ट में है और बी जो है आपका दैट इज इन इफेक्ट ऑफ साउथ पोल. और फ्लेमिंग के बाएं हाथ, अभी मैंने बताया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग कंडक्टर ए लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का प्रयास करता है. ए लूप जो है एंटी क्लॉकवाइज दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का
प्रयास करता है जब तक इस लूप में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, मीन्स जब तक इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वह मैग्नेटिक फील्ड में स्थापित रहता है, और वह मैग्नेटिक फील्ड में स्थापित रहता है, जब तक आर्मेचर लूप में उत्पन्न किया हुआ टॉर्क लूप में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता रहता है। आर्मेचर लूप में हाफ साइकिल घूमने के बाद बी का उत्तरी ध्रुव के इफेक्ट में आता, मतलब आप देख पा रहे कंडक्टर जब रोटेट करेगा तो एक बार नॉर्थ आएगा, फिर आपका साउथ आएगा, लाइक दैट। मीन्स ए एंड बी जो कंडक्टर हैं आपके रोटेट करते रहेंगे, तथा कंडक्टर ए दक्षिण पोल, मीन्स ये नॉर्थ है, यहाँ पे ए है, अभी जब ये रोटेट करके आएगा तो यहाँ पे नॉर्थ की जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक इसी समय कम्यूटेटर द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने की वजह से पुनः एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स उत्पन्न होता है। इस तरह से देखिए, अगर जो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें दोनों भी, तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में कंटिन्यू घूमने लगेगा। और अगर जो एक टॉर्क आपका इधर लगेगा, एक इधर, तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, तो रोटेट ही नहीं करेगा। तो दोनों टॉर्क आपके एक डायरेक्शन में जब लगेंगे तो हमारी मोटर टाउ इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर से क्या होगी, ये जीरो जब नहीं होगा तब हमारी मोटर रन करना शुरू कर देगी। इस प्रकार डीसी मोटर के आर्मेचर में अनेक कंडक्टर लूप स्थापित किए जाते हैं, अनेक कंडक्टर लूप स्थापित किए जाते हैं, जिससे कि मैक्सिमम टॉर्क को उत्पन्न किया जा सकता है। मीन्स टॉर्क की वैल्यू क्या हो, आपकी मैक्सिमम हो, टॉर्क की वैल्यू क्या हो, आपकी मैक्सिमम। डीसी मोटर में घूमने की डायरेक्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। Moving ahead, this is the also very important question. Why BT UP 2006, 8, 9, 12, आपका 14, 16, 18 और मोस्ट प्रोबेबली आपका 20 में भी आया। तो ये जो आपका है दैट इज डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का जो है आपका ईएमएफ का जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ लेट सपोज Z जो है आपका आर्मेचर में कुल कंडक्टर है, Z क्या है, कुल कंडक्टर है, P क्या है, आपका नंबर ऑफ पोल्स है, मीन्स ध्रुवों की संख्या है, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है, फाई क्या है, फ्लक्स प्रति पोल, यानी फाई जो है वेबर में फ्लक्स प्रति पोल। ये क्या है आपका आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या, आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या। एन क्या है, आर्मेचर की स्पीड साइकिल यानी कि आरपीएम। ई आपका है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज दी वोल्ट।
और मोटर की बात करेंगे तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए आपका ये कह रहा है कि आर्मेचर में उत्पन्न हुआ ईएमएफ इसके पैरेलल मार्ग में उत्पन्न हुए ईएमएफ के बराबर है। अतः एक कंडक्टर द्वारा एक साइकिल में काटा गया फ्लक्स, एक साइकिल में क्या है आपका फाई इंटू पी है। तो एन साइकिल की जब बात करेंगे तो एन साइकिल में आपका ए फाई पी में एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए एक सेकंड की बात करेंगे यानी कि पर सेकंड का मतलब आपका हो जाता है अपॉन 60। आर्मेचर के एक आर्मेचर में अब प्रति सेकंड की जब बात करेंगे तो फैराडे के नियम के अनुसार आपका कह रहा है कि कंडक्टर द्वारा प्रति सेकंड में काटा गया फ्लक्स, कंडक्टर द्वारा प्रति सेकंड में काटा गया फ्लक्स जो होगा दैट इज 5pn अपॉन 60। प्रति सेकंड में काटा गया जो होगा दैट इज 5pn अपॉन 60। एक कंडक्टर में उत्पन्न जो आपका ईएमएफ है दैट इज एक कंडक्टर द्वारा प्रति सेकंड में काटा गया फ्लक्स, तो ईएमएफ इक्वल्स टू 5pn अपॉन 60। देखिए तथा z अपॉन a कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ। अब देखिए ये हमारा z और a, z क्या है आपका कुल कंडक्टर की संख्या, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, a क्या है आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स की संख्या। तो यहाँ पे आपका जो टोटल आता है 5pn अपॉन 60 z अपॉन। This is the very important point. EMF I am writing here EMF equals to, देखिए फाई फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स जब चेंज होता है तो EMF इंड्यूस होता है और P पोल को लिंक कर रहा था तो 5P n नंबर ऑफ कंडक्टर्स थे, पर सेकंड की बात कर रहे थे तो 60 हो जा रहा था इंटू Z नंबर ऑफ आपका टोटल कंडक्टर्स होता है और A आपका होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। So this is the formula which is very important. This is the very important formula which are asked in many times in your BTE examination. I hope it is okay to all. Now see, लैप तथा वेव वाइंडिंग में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लैप तथा वेव वाइंडिंग के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में परस्पर संबंध, मतलब ईएमएफ जो है आपका एक आपका वेव में निकला है और ईएमएफ एक आपका लैप में निकला है, इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो लैप में बताया गया था A इक्वल्स टू पी होता है और वेव में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A की वैल्यू क्या होती है 2 के इक्वल होती है। तो सेम यही वैल्यूज को हमें पुट करना है। तो सी हियर केस 1 की बात अगर हम करेंगे केस 1 का, तो लैप वाइंडिंग के लिए हमें क्या करना है A इक्वल्स टू पी रखना है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट A इक्वल्स टू पी। तो EMF इन लैप वाइंडिंग इक्वल्स टू 5pn अपॉन 60 Z अपॉन A और A की जगह पे आपका क्या रखा गया है P। तो यहाँ आप देखेंगे P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, EL की जो वैल्यू आएगी दैट इज EL की जो वैल्यू आएगी 5nz अपॉन 60। एंड केस 2 की जब हम लोग बात करेंगे, केस 2 की जब बात करेंगे
वेव वाइंडिंग के लिए हमें क्या रखना है, ए इक्वल्स टू टू रख देना है, ए इक्वल्स टू टू रखना है। और वेव के लिए जब हम निकालेंगे 5 Pn/60 Z, और ए की वैल्यू हमने क्या रखा है, यहाँ पे 2 रख दिया है। तो आपका ई यानी कि ईएमएफ वेव वाइंडिंग के लिए वी आर गेटिंग हियर 5 Pn Z/120. So this is the formula. And if I'm going to take about the ratio wave winding to lap winding, this much you can see whole will be cancel out, phi से phi पर चला जाएगा, z से z चला जाएगा, n से n चला जाएगा, यहाँ आपका ऊपर p बचेगा। ओके, और 60 यानी कि 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि p/2। तो यहाँ आपको एक मिला फाइनल, आई एम राइटिंग हियर वेव अपॉन EMF लैप, दोनों का जो रेशियो आ रहा है P/2 आ रहा है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन विच you must remember for the examination for the derivation purpose, and many numerical can be asked. If I am talking about कि आप EMF वेव वाइंडिंग का बता दीजिए, 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो P टाइम्स E इंटू लैप अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिस इज, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आप बता दो लैप वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ, लैप वाइंडिंग में निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, ई डब्ल्यू अपॉन पी, और ये 2 जो है आपका W के साथ मल्टीप्लाई है। सो दिस वन। सो फाइनली कंक्लूजन, वेव वाइंडिंग में ईएमएफ P/2 टाइम्स लैप वाइंडिंग में ईएमएफ के बराबर। फाइनल ये एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में एकदम से रिमेंबर कर लेना है, और फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हैं। Now see here next, बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। देखिए आपका 2006 में पूछा गया है, 7 में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है, 9 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, अब आपका 20 में भी ये पूछा जा सकता है। सो इट इज द इम्पोर्टेंट, सो लेट अस डिस्कस। देखिए बैक ईएमएफ की जब हम लोग बात करते हैं, ये मैंने सबसे पहले बताया था कि मोटर के आर्मेचर को हम लोग कैसे दिखाते हैं। दिस इज द आर्मेचर ऑफ मोटर। इसमें 2 टर्मिनल्स हम लेते हैं, दैट इज A1 एंड दैट इज A2। अब इसके बीच में एक कार्बन के ब्रशेस को इंसर्ट करें, ब्रशेस। ओके, नाउ सी, अब यहाँ जो आर्मेचर में इंड्यूस्ड होता है बैक ईएमएफ, इन केस ऑफ मोटर बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो आपका सप्लाई वोल्टेज है टर्मिनल का, यानी कि सप्लाई वोल्टेज का दिशा आपका ऐसे है, तो आपका EB का जो डायरेक्शन होगा ये इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है, यानी कि अपोजिट होता है। सप्लाई वोल्टेज मीन्स टर्मिनल वोल्टेज एंड बैक ईएमएफ बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों आपके क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेट अस हैव अ लुक इन हिंदी वर्जन।
जब मोटर का आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, मींस आर्मेचर नॉर्थ साउथ पोल के बीच में आर्मेचर रोटेट करता है, तो कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स लाइन को काटता है और इसके कारण उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। और लेंज लॉ के नियम के अनुसार इसमें उत्पन्न ईएमएफ की डायरेक्शन सप्लाई वोल्टेज के विपरीत डायरेक्शन में होती है। इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। अप्लाइड वोल्टेज लेट अस सपोज अगर जो V है या VT, तो ये आपका बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप के होता है। मींस हमें पता है कि केवीएल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, सिग्मा E एंड माइनस IaRa इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्टिव जो पावर सप्लाई करेगा और इक्वल्स टू IaRa, यानी कि जो पावर कंज्यूम करेगा। अब देखिए ये सप्लाई वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज है और ये आपका पावर कंज्यूम करेगा, और रेजिस्टेंस की वजह से जो आर्मेचर में आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो ये दोनों आपके क्या है, पैसिव एलिमेंट एंड दिस वन द एक्टिव। तो यहाँ पे EV की वैल्यू की बात करेंगे, EV को अगर जो इधर हम लाएंगे या यहीं EV को रहने दीजिए, तो V और माइनस IaRa, ये एक एक्सप्रेशन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे बात ये होती है कि क्योंकि बैक ईएमएफ फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न होता है, इसलिए बैक ईएमएफ का मान जनरेटर में प्रयोग किए गए समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो EB की जो वैल्यू होगी दैट इज 5Zn/60 P/A, और IA की जो वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो आपका EB माइनस ये V माइनस EB अपॉन RA। उपरोक्त सूत्र से आर्मेचर करंट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से IA को इधर भेज दीजिए, V माइनस EB अपॉन RA, V माइनस EB अपॉन RA। उपरोक्त सूत्र आर्मेचर करंट ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः बैक ईएमएफ का मान 90%, सामान्यतः बैक ईएमएफ का मान 90% होता है। So thanks for watching this video, and we will discuss in next video the remaining portion of DC machine. Please like, share and subscribe